we are dancers, we create the dreams. Dance is the most beautiful form of expression of human feelings. And if it is a classical dance, it depicts the graceful footwork, eye movement. चाहे व्यक्ति किसी भी जाति किसी भी धर्म का हो, ईश्वर की सत्ता स्वीकार करता है, उन्हें अपना सर्वस्व सौंपता है, उस परमात्मा के चरणों में सभी को सुकून मिलता है। राहत
जन कभी दो बार नहीं मिलते, फूल कभी दो बार नहीं खिलते, जन कभी दो बार नहीं मिलते। मिलने को तो हजारों लोग मिल जाते हैं, पर हजारों गलतियां माफ करने वाले माँ बाप नहीं मिलते। In the words of Henry Ford, coming together is a beginning, keeping together is a progress, and working together is... We collectively work in the secret behind the progress that our school has been seeing. Now I request our principal ma'am, Mrs. Pushpalata Saini, for reading the annual report. Please ma'am. Mr. J.P. Chandeliya, Ameli Pilani, the guest of honor, Sri Jilalal Ji, the chairman Pilani, Nagarpalika, and Sri Krishnalal Bhumia Ji, member of Nagarpalika, of our respected chairman, Mr. Phul Singh Saini, parents, my team of teachers, the all energetic participants, and my all presented students. A hearty good evening to all of you with a warm welcome. In today's celebration, our main heroes are our students. So welcoming them and their parents too, along with other ladies and gentlemen. The journey with the student so far has been exciting, and our staff puts its best effort to find out the hidden qualities of each and every student. It is very important to boost up the confidence level of a student so that issues such as stage fear, not mixing with others, command on the language, etc. is totally eradicated from an early age. If we compare today's students, they are more courageous than us. The courage to address in front of such a big gathering, the whole ideas coming on stage can be overwhelming, but our little ones just take it as just they want with spirit. These little children, when every morning they walk into school, set this purpose for our existence in the school. They are one who give courage to look forward into the generation that is going to make the difference. Kids Garden Secondary School always states, we are a school with
difference, and let me tell you, difference just doesn't mean we excel academically. That's part of our existence, that part of our being in education. For us, education doesn't stop with marks, it goes beyond marks. It's my humble request to each and every parents. Do not attach too much importance to grades. Do not put in your child's marks mind that it is essential to come first, second or third in class. And the most important thing is the quality time of parents with children. It helps to boost up them in every skill. आज पिलानी में किड्स गार्डन सेकेंडरी स्कूल किसी परिचय का मोहताज नहीं है। हमारी मेहनत और प्रयासों के रंग से निखरे बच्चे खुद इसका एक संपूर्ण परिचय है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए स्कूल में अलग अलग तरह के कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, जैसे डिबेट, ड्राइंग एंड पेंटिंग, डांस, स्पोर्ट्स, पिक एंड स्पीक, श्लोक, दोहा वाचन प्रतियोगिताएं आदि, ताकि बच्चों की प्रतिभा हर क्षेत्र में निखर सके और उनमें आत्मविश्वास बढ़ सके। स्कूल में विभिन्न इंटर हाउस कंपटीशन भी ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, जैसे जीके, क्विज कंपटीशन, रंगोली, ग्रुप सॉन्ग्स, ग्रुप डांस कंपटीशंस, ताकि बच्चों में टीम स्पिरिट डेवलप हो सके। इस वर्ष स्कूल में स्पोर्ट्स डे एनएस अकेडमी में मनाया गया, जहां बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया तथा एक नया अनुभव प्राप्त किया। यहाँ प्ले ग्रुप, प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रुप में बच्चों की रुचि के अनुसार विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गई, जिनके अलावा इंटर हाउस स्कूल बॉयज टूर्नामेंट भी हुआ, जिसमें गांधी हाउस विजय रहा तथा कार्तिक सैनी मैन ऑफ द मैच रहे। इंटर हाउस गर्ल्स रिले रेस भी आयोजित की, जिसमें ध्यानचंद हाउस ने जीत हासिल की। इस वर्ष हमारे स्कूल की क्रिकेट टीम ने मिस्टर रवि कटेवा के सहयोग से डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भाग लिया तथा सराहनीय प्रदर्शन किया। हमारी टीम के एक स्टूडेंट का सिलेक्शन स्टेट लेवल टूर्नामेंट की टीम के लिए भी किया गया। बच्चों के खेलों के इसी उत्साह को देखते हुए शांति मेमोरियल ट्रस्ट ने स्कूल के लिए एक प्लॉट लिया है, जहां बच्चों के लिए गेमी जोन बनाया जाएगा, ताकि बच्चों की स्पोर्ट्स के प्रति और अधिक रुचि बढ़ाई जा सके, क्योंकि तकनीकी विकास के कारण हमारे बच्चों में टीवी और मोबाइल तक सीमित कर दिया है, जिसके कारण बच्चों की शारीरिक गतिविधियां कम हो गई है। खेलकूद के माध्यम से शारीरिक व्यायाम तो होता ही है, साथ ही बच्चों में कुछ ऐसे सेंस डेवलप होते हैं जो सिर्फ किताबें पढ़ने से नहीं आ सकते। शिक्षा का उद्देश्य बच्चों को भविष्य में सफल बनाना है। एक सफल इंसान के लिए प्रभावी व्यक्तित्व का होना भी बहुत जरूरी है, जिसके लिए हम हर वर्ष पर्सनालिटी ग्रूमिंग वीक ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसमें मेडिटेशन, योगा, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्पिरिचुअलिटी, टेबल मैनर्स, हेल्थ एंड केयर, फर्स्ट एड, पब्लिक स्पीकिंग आदि जैसी क्लासेस चलाई जाती हैं। इन सभी विषयों से जानकारी संबंधित विषयों के स्पेशलिस्ट द्वारा दी जाती है। इस प्रोग्राम में इस वर्ष हमें मिस्टर राजेंद्र सिंह, ब्रह्म कुमारी से स्वाति दीदी, डॉक्टर राजेंद्र, डॉक्टर जगदीश चौधरी, टीम ऑफ नेचुरोपैथी फ्रॉम एलन बिरला योगा केंद्र, टीम ऑफ हार्टफुलनेस से पूरा सहयोग प्राप्त हुआ। आप सभी को ये बताते हुए मुझे बहुत गर्व हो रहा है कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी हमने 100% रिजल्ट दिया 10th बोर्ड एग्जाम में। 25 स्टूडेंट्स के इस बच्चों में बैच में 20 स्टूडेंट्स ने फर्स्ट डिवीजन हासिल की, 4 स्टूडेंट सेकेंड डिवीजन तथा एक स्टूडेंट थर्ड डिवीजन से पास हुए। हर्षवी सैनी बैच में फर्स्ट रैंक 89.67% तथा मैथ्स में 100% अंकों के साथ प्राप्त किया। इसके बाद निहारिका शर्मा 89% के साथ दूसरे स्थान पर रही तथा तरुण शेरावत 83.03% पर तीसरे स्थान पर रहे। कुल मिलाकर सभी सब्जेक्ट में 64 डिस्टिंक्शन प्राप्त की गई तथा 25 में से 12 बच्चों ने 70% से ऊपर अंक प्राप्त किए। इस रिजल्ट के लिए मैं अपने सभी अध्यापकों की टीम को बधाई देती हूँ तथा उनके कठिन परिश्रम के लिए दिल से उन्हें धन्यवाद देती हूँ।
तथा आने वाले वर्षों में इससे भी अच्छे रिजल्ट की कामना करती हूँ। अभिभावकों के सहयोग व विश्वास के बल पर आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं तथा उन्हीं के आग्रह पर स्कूल को अपग्रेड करने का विचार किया जा रहा है तथा भविष्य में साइंस व कॉमर्स की क्लासेस शुरू करने पर योजनाएं बनाई जा रही हैं। स्कूल में हम कॉन्सेप्ट बेस्ड स्टडी पर फोकस कर रहे हैं। वीक एंड एवरेज बच्चों को सिखाने के लिए नए मेथड्स का यूज किया जा रहा है, जैसे प्लेइंग टेक्निक्स, स्मार्ट क्लासेस, एक्टिविटी बेस्ड स्टडी, ऑब्जर्वेशन टेक्निक्स एंड प्रैक्टिकल मेथड्स, ताकि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके। जब बच्चों से फीडबैक लेने का टाइम आता है तो हम सिर्फ रिटन टेस्ट ही नहीं लेते, ओरल टेस्ट को भी अलग अलग तरह से लिया जाता है, जैसे लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल, ग्रुप डिस्कशन, कॉन्सेप्ट्स, एक्टिविटी प्रेजेंटेशन। आप सभी को मैं एक बात कहना चाहूंगी कि जब बच्चों को एक्टिविटीज बनाने के लिए होमवर्क, जब ये एक्टिविटी बच्चा पूरी क्लास और टीचर के सामने प्रेजेंट करता है तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल तो बढ़ता ही है, साथ ही उसको गहराई से विषयों का ज्ञान भी होता है। We work with every new ideas, every single moment that will make us that we are the school with difference. Thanks to all management members for being with us. Thanks the entire team of teachers for working with us tirelessly, not counting the hours, but counting the satisfaction the day derive from this profession. Thanks to parents for choosing us and staying with us and presenting with us for cause of education. I would feel if I would not say a word to congratulate or thanks the student for giving us chance to prove ourselves. जैसा कि हम जानते ही हैं कि हर बच्चा 100% नहीं हो सकता, तो ज़रूरी है कि हम उसके हुनर को समझें और उसको निखारने में उसकी मदद करें। अंत में एक बार मैं सभी को धन्यवाद देते हुए कहना चाहूँगी, परिंदों को मिलेगी मंजिल, परिंदों को मिलेगी मंजिल यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं, वो लोग रहते हैं खामोश अक्सर, वो लोग रहते हैं खामोश अक्सर, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। धन्यवाद। जिंदगी का एक ऐसा पल जिससे ही भले जीवन का एक साल कम हुआ, लेकिन उसकी तैयारी सब लोग धूमधाम से करते हैं। मैं भी अपने बर्थडे की तैयारी कई दिनों पहले शुरू कर देता हूँ, लेकिन पश्चिम सभ्यता से प्रभावित होकर हम जन्मदिन के मूल उद्देश्य से भटक गए हैं। जन्मदिन यानी केक काटना, पार्टी करना, डांस करना, मोमबत्ती बुझाना इत्यादि, जबकि होना यह चाहिए कि उस दिन दिए जलाए, कोई नया गुण को पाले या बचाए, तभी तो जन्मदिन का सही सेलिब्रेशन होगा। Every living being on this earth was born on same on the other day. Then why don't we celebrate everyone's birthday? जन्मदिन मनाना तो दूर, हम तो जानवर को जीने का हक भी नहीं दे रहे। बलि के नाम पर उनकी जान लेने से भी नहीं हम सकते। क्या भगवान ने हमें ऐसा करने को कहा है? उन्हें भी तो हमारी ही तरह ईश्वर ने जीने का अधिकार दिया। किसी अनजान कवि ने बहुत खूब पंक्तियां लिखी है इस बारे में। धर्म के नाम पर निर्दोष पशुओं की बलि, धर्म के नाम पर निर्दोष पशुओं की बलि रजा हो नहीं सकती है तेरी अदा। उस निर्भय की आंखें देखो, जीने का ख्वाब वहाँ भी पलता है। उस बेबस के दिल में झांको, ईश्वर वहाँ भी बसता है। ये जमीन उसकी भी है, आसमां उसका भी है, चांद सूरज और हवा सब पे हक उसका भी है। फिर जान लेने की रीत ये कैसे चली? रजा हो नहीं सकती है तेरी अदा। तो चलिए प्रण लेते हैं कि आज से किसी बेजुबान पर अपना जो नहीं जलाएंगे, जहाँ तक हो सके उन्हें भी जीने की आज़ादी देंगे। In the upcoming performance, we are celebrating the birthday of a dear animal. हम देखेंगे किस तरह जानवर भी जीने का हक मांग रहे हैं। आखिर उनकी लाइफ को वो अपने हिसाब से क्यों ना जिए? Big coach, our cute kids of primary section who are coming on the stage with a bubbly and a rocking performance. Thank you. जाते हैं चिड़िया चुप चुप करती हैं, तोते ताली बजाते हैं, ये सब
কি বলছে বলছে কি হ্যাপি বার্থডে টু মি मेरा जन्मदिन सबने मनाया आलू भी आया कालू भी आया मेरा जन्मदिन सबने मनाया आलू भी आया कालू भी आया हट जाओ सब रास्ते से जंगल के राजा आते हैं चिड़िया चू चू करती है तोते ताली बजाते हैं ये सब मेरे साथी हैं मिलकर शोर मचाते हैं की बोलछे की हैप्पी बर्थडे टू मी कितने सुंदर ये कितने प्यारे ऐसे नहीं जो इंसान सारे ये कितने सुंदर ये कितने प्यारे ऐसे नहीं जो इंसान सारे ये बंदर इंसानों की देखो हंसी उड़ाते हैं चिड़िया चू चू करती है तोते ताली बजाते हैं ये सब मेरे साथी हैं मिलकर शोर मचाते हैं की बोलछे की हैप्पी बर्थडे टू मी
बिना दुनिया में रोटी नहीं मिलती। रोटी नहीं मिलती, लंगोटी नहीं मिलती। वैसे बिना दुनिया में रोटी नहीं मिलती, रोटी नहीं मिलती, लंगोटी नहीं मिलती। नाम अपना न बदनाम कर करे, हाथ जोड़ सबको सलाम कर करे। ये दुनिया में रहना है तो काम कर करे। मेरे जंतु बचाओ, पृथ्वी बचाओ, चलो इस संसार को स्वर्ग बनाओ। अभी अभी हमने देखा है सब मोबाइल लेकर लगे हैं। क्या कभी सोचा है मोबाइल कितना हावी हो गया है? इससे इंस्पायर्ड हमारी अगली परफॉर्मेंस। Now let's have a variation. Let's come back to the real life. Let's come back to the drama of real life. Along with all the merriments and the happiness of life, it is equally important to bring out the given realities of our existence. If we see in the way of life itself is a drama, and we are all artists playing our role assigned by ourselves to God. At this moment, it is the time to next performance, which is named as mobile addiction. You know why mobile are called cell phones? Oh yes, actually people are prisoners of their phones. That's why they are called cell phones. सही कहा। आजकल लोग बेशक खाना पीना भूल जाए, लेकिन अपना मोबाइल चार्ज करना नहीं भूलते। लोग हर वक्त फोन में घुसे रहते हैं और फोन का चार्जर उनके फोन में घुसा रहता है। आजकल तो बड़ों से ज्यादा बच्चे मोबाइल पकड़े हैं। हर वक्त बस गेम गेम गेम। आंगन में नीम अब और बरगद मुरझाने लगे हैं, क्योंकि घर के बच्चे भी अब मोबाइल चलाने लगे हैं। खामोश है ये जमाना सारा, चारों ओर बस मोबाइल का शोर है। मोबाइल की वजह से सारा जमाना बड़बड़ा रहा है। कभी लगता है जैसे आदमी अकेले में बड़बड़ा रहा है। माना कि इससे जीवन आसान हो गया है, लेकिन इससे जीवन में घमासान भी हो गया है। मोबाइल का प्रचलन बढ़ा जब से चारों ओर, सुबह शाम बस बातों में रहता सबका जोर। सहजता थी, सादगी थी, बंदगी थी, ये व्हाट्सएप और फेसबुक नहीं थे तब जिंदगी थी। सचमुच आजकल इस मोबाइल की वजह से सब कुछ पीछे छूट रहा है, यहाँ तक कि रिश्ते भी। क्या ये सब यूं ही चलेगा? Human had made machine for ease of work, but in today's scenario, the machines have become so insensitive. Let's see in this upcoming performance, which is named as mobile addiction. मोबाइल एक नशा बन गया है। मोबाइल में टेक्नोलॉजी हमारी सुविधा के लिए बनाई गई है, और आजकल की जनरेशन इसकी इतनी आदी हो गई है कि अपना सामान्य जीवन में भूल गई है। इसे हम नाटक के माध्यम से दिखाना चाहते हैं कि अपनी सुख सुविधाओं का अपना जुनून न बनाए,
वह इसका सीमित उपयोग ही करें जो हमारे व हमारे बच्चों के लिए लाभदायक हो। तो चलिए देखते हैं इसकी एक झलक। तो जरा हमको है ये कहना, वक्त है क्या तुमको पता है ना, के दिन है अब जाग उठा, आंखें मसलता है सारा ये समा, आवाज़ें भी लेती है अंगड़ाइयाँ, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण नारायण। बोलो क्या हाल है पृथ्वी का? प्रभु, इस पृथ्वी पर इस मोबाइल ने हाहाकार मचा रखा है, और सबसे बुरा हाल तो शादी करने वालों का है। सोशल मीडिया साइट्स पर मिलते हैं और शादी.com से रिश्ते बनाकर शादी कर लेते हैं। और कलयुग है, और कलयुग। और अंत में एक दूसरे की चीजों को OLX पर बेच देते हैं। अच्छा, आइए प्रभु देखते हैं एक घर की कहानी। जीवाले बाबू मेरा गाना चला दो, गाना चला दो, गाना चला दो, जीवाले बाबू मेरा गाना चला दो, जीवाले बाबू मेरा गाना चला दो। क्या मेरा मोबाइल सबसे गाने चलाकर डांस कर रही है? कोई और काम है तुझे? कुछ देर पढ़ाई कर लिया कर।
तो मोबाइल में दिल से आवाज आती है, अरे जिंदा हो या चल बसे। अरे आप आ गए, मुझे तो पता ही नहीं चला। तुम्हें कैसे पता चलेगा, तुम तो सारा दिन इस मोबाइल से चिपकी रहती हो। आहा, आप तो इसे मोबाइल को छूते ही नहीं हो। अच्छा छोड़ो, हमारा बेटा कहाँ है? पढ़ रहा है। क्या पढ़ रहा है? मुझे नहीं पता, खुद ही जाके देख लो। देखता हूँ, भगवान जाने क्या हो रहा है इस घर में। अजी सुनती हो? इधर आओ। आ रही हूँ। देखो तुम्हारा बेटा क्या कर रहा है, ये पढ़ थोड़ी रहा है, ये तो कॉपी के नीचे मोबाइल में गेम खेल रहा है। भगवान, क्या करूँ मैं सेल्फी का? अब समझ बैठे फोन को। पहले एग्जाम का पास कर ले। नालायक, आप सही करते हो। सर का बोला ना नहीं। नारायण नारायण बोलो क्या समाचार है पृथ्वी का? प्रभु, फिर से वही मोबाइल की रामायण। पहले लोग उठकर बोलते थे रागरे वस्ते लक्ष्मी, पर आजकल उठते ही घर में मोबाइल आ जाता है। और कलयुग है, और कलयुग। प्रभु, पहले लोग भोजन करते वक्त आपको याद करते थे, पर आजकल उस मोबाइल को लेकर बैठ जाते हैं। अब मैं क्या करूं इन मनुष्यों का, जो अपने ही दुश्मन बन बैठे हैं। प्रभु, पहले लोग सोने से पहले आपका चिंतन करते थे, पर आजकल सोशल मीडिया पर कितने लाइक्स मिले उसकी चिंता में ही नहीं सोते हैं। आइए प्रभु, देखते हैं इसकी एक झलक। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। सूरज न बदला, चांद न बदला, ना बदला रे आसमान। कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। अरे ये क्या कर रहे हो, वीडियो क्यों बना रहे हो? अरे मदद क्यों नहीं करते? अरे हम इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर डालेंगे तो बहुत सारे लाइक मिलेंगे। अरे क्या हो गया आजकल के लोगों को? कोई इनकी मदद भी नहीं करता, कोई ने हॉस्पिटल भी नहीं पहुंचाता। अरे ये पुलिस का था। हाँ, ये पुलिस की नजर से बच पड़ेगा नहीं तो ये लोग। Sorry, he's no more. Patient को बहुत ज़्यादा खून मिलने से हम उसे नहीं बचा पाए। Sorry. देखा प्रभु, ये हाल हो गया पृथ्वी का। लोग इस मोबाइल के चक्कर में प्रेम, दया, भाईचारे को भूल बैठे हैं। अब आप ही बताइए इसका क्या हल होगा? समाज तुम मेरी बात, इस मोबाइल का तुम छोड़ो साथ। आज नहीं माने तो पछताओगे तुम आगे, अपना सब कुछ खोकर तुम जागे तो क्या जागे। इस मोबाइल ने छीन लिए हैं बचपन याद परिवार से। जागो मूर्ख बालकों जागो, ये है दूधारी तलवार। बन गए हो तुम इसके गुलाम, तब तुम इसकी छोड़ो तुम। फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर की दीवारों को तुम तोड़ो, फिर से जीना असल जिंदगी। खेलो कूदो मौज मनाओ, मिलो सभी से हाथ मिलाकर, मोबाइल से आजादी पाओ। रखो तुम इसको अपने पास, पर सीमित कर दो इसका
इसको अपना बट बनना बनना इसके खिलाफ। धन्यवाद। ये मोबाइल यूं ही हट्टा कट्टा नहीं हुआ, इसने हमारे बहुत से लम्हे खाए हैं। बदलती दुनिया का ऐसा असर होने लगा है, आदमी पागल और फोन स्मार्ट होने लगा है। जब तक फोन वायर से बंधा था, इंसान आजाद था, पर जब फोन आजाद हुआ, इंसान फोन से बंध गया है। अंगुलियां निभाने का रिश्ता तो रहे ही नहीं आजकल, जुबान से निभाने का तो वक्त ही कहाँ है। सब बस टच में है, बिजी है, पर टच में कोई नहीं है। तो फ्रेंड्स, keep in touch with mobile, not with Dilse. Are in order. We are happy for you. Let's call achievers on the stage and pat on their back for doing their best. But before, may I call our respected Chairman Sir Mr. Kulsing Saini to accompany our Chief Guest Mr. J.P. Chanderia ji on stage and honor him. Please, sir. Thank you, sir. He also scored 99.09% in class 4. So please give a big hand to Nirbhay. Second is Hemant from class 3rd, who scored 97.57% in class 2nd. Give him a big hand. Next on the stage is Nitya. He is in class 4. He got first position in dance competition. He also scored 97.62% in class 3rd. Next is Arjuna from LKG class, who has got first rank in position in poem recitation competition. Give a huge round of applause to Viren. Next in the list is Shudyan. This is Vinay coming up. Next is Navya from class 2nd. She got second position in dance competition. Next is Janvi from class 3rd. She got third position in From class 3rd, who got third position in dance competition. From class 2nd, who got. Next is Kritika from class 2nd, who got third prize in drawing competition and also scored 94.87% in. Next is Prerna from class 2nd. She got second position in cricket speak competition and second position in poem recitation competition. He is Ayush from class 2nd. He got consolation prize in dance competition. Speak competition and also got second prize in slope recitation competition. This is Kavyanshi. Next is Niharika from class 2nd. Next is Lakshmi from class 2nd, scored 96.1. This is Sani, percent in class 1st. Next is Vansh. Next is Kajal from class 2nd. Team Rashika from class 3rd. She got third position in pick and speak competition and she also scored 96.13% in class 2nd. So give a huge round of applause for her. Got first position in Hindi calligraphy and he also scored 93.63% in. He scored 91.05% in class 2nd.
सबसे पहले माँ सरस्वती को सत सत नमन। मेरे साथ इस पंडाल में विराजे हुए पिलानी के प्रथम नागरिक श्री हीरालाल जी, नगर पालिका के सभी नवनिर्वाचित सदस्यगण, पार्षदगण और भूतपूर्व पार्षदगण, प्रतिष्ठित नागरिकगण, अभिभावकगण, इस स्कूल की प्रिंसिपल साहिबा, स्टाफ के मेंबरान, सभी कर्मचारीगण और प्यारे बच्चों, बहुत शानदार कार्यक्रम अपन सभी ने देखा। बच्चों के कार्यक्रम बड़े अच्छे थे, सटीक थे, कोई न कोई संदेश दे रहे थे। हमारी लाइफ के लिए हमें संदेश देना चाहिए। इतनी भारी संख्या में, इतनी अच्छी संख्या में जो अभिभावक बैठे हैं, विशेषकर माताएं बैठी हैं, बच्चों के गार्जियंस बैठे हैं, उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिस एज ग्रुप के बच्चे हैं वो एज ग्रुप रॉ मटेरियल की तरह होता है और ज़्यादा समय वो रॉ मटेरियल घर में रहता है, अभिभावक के पास रहता है, माँ बाप के पास रहता है, अपने गार्जियंस के पास रहता है, अपने परिवार के साथ रहता है। इसलिए बच्चे को ऐसा वातावरण देने की आवश्यकता है घर में कि स्कूल के प्रति उसका आकर्षण बढ़े, पढ़ाई के प्रति उसका मन लगे और वो पढ़ाई से जी नहीं चुराए। वो वातावरण घर में मिलेगा तो बच्चा अधिक से अधिक स्कूल में जाने की कोशिश करेगा। लेकिन स्कूल में आने के बाद जो प्रिंसिपल मैडम है और उनके जो स्टाफ मेंबरान हैं, उन सभी का एक दायित्व बनता है कि बच्चे को अपना बच्चा समझ के पढ़ाए। जो एजुकेशन आप अपने स्वयं के बच्चे को देते हैं उसी क्वालिटी की एजुकेशन बच्चे को मिलनी चाहिए ताकि वो देश के अच्छे नागरिक आगे जाके बन सके। इन बच्चों में ही देश के राष्ट्रपति हैं, इन बच्चों में ही देश के प्रधानमंत्री होंगे, इन्हीं बच्चों में कोई IAS होगा, कोई IPS होगा, कोई प्रोफेसर होगा, कोई डॉक्टर होगा, फौज के अफसर यही निकलेंगे और सारे समाज का जो भी बोझ है, कंधा है, वो यही लेंगे बोझ को उठाने के लिए और देश को आगे बढ़ाएंगे। अगर हमने कोई भी कमी इसमें छोड़ दी हमने तो निश्चित रूप से हम देश के साथ अन्याय करेंगे। स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं था, फिर भी श्री फूल सिंह जी और उनकी टीम को, प्रिंसिपल मैडम को मैं इसलिए मना नहीं कर सका कि राजस्थान का एजुकेशन कमिश्नर रहा हूँ, यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर भी रहा हूँ और काफ़ी ज़्यादा समय एजुकेशन डिपार्टमेंट्स के जॉब्स के साथ बिताया है। एक समय था राजस्थान के लगभग 1 लाख स्कूल्स को मैं देखता था, 1 लाख स्कूल्स। इसलिए शिक्षा विभाग के कार्यक्रम में जब भी जाता हूँ तो होमली फील करता हूँ। कार्यक्रम बहुत आते हैं, हर फील्ड के आते हैं, हर डिपार्टमेंट के आते हैं, हर क्षेत्र के आते हैं, जाता सभी में हूँ। लेकिन शिक्षा विभाग का कार्यक्रम जब मैं जाता हूँ उसमें मुझे ऐसा लगता है जैसे अपने किसी घर के कार्यक्रम में आया। दूसरा इम्पोर्टेंट यह भी है कि ये बच्चों का कार्यक्रम है और हमारे देश की जो भावी पीढ़ी का निर्माण कैसा हो रहा है ये देखने को मिलता है। मैं कोई गाइड करने की स्थिति में नहीं, कुछ सिखाने की स्थिति में नहीं, लेकिन कुछ बात बोल करके जो भी कुछ स्टाफ मेंबरान को, प्रिंसिपल को या डायरेक्टर साहब को मैं कह सकता हूँ कि कोई त्रुटि आपने इन बच्चों के निर्माण में छोड़ दी तो निश्चित रूप से वो जो त्रुटि है, वो जो आपने गलती छोड़ दी, वो देश के लिए भार बनेगा। यदि इंजीनियर कोई गलती छोड़ देता है तो बिल्डिंग जैसी बन गई उसको रंग रंगन करके, उसको डेकोरेट करके इंजीनियर की गलती को हम छिपा सकते हैं।
डॉक्टर अगर कोई गलती कर देता है तो वो दिन 4 दिन चर्चा होती है और वो उसकी गलती हमेशा हमेशा के लिए दफना दी जाती है या दाह संस्कार कर दिया जाता है। वकील कोई गलती कर देता है तो उसका रेमेडी है अपील करके। लोअर कोर्ट कोई गलती कर देता है तो अपर कोर्ट है उसको ठीक कर देता है। लेकिन अध्यापक का रोल इतना इंपॉर्टेंट है कि अध्यापक ने कोई गलती कर दी बच्चों के निर्माण में तो उसकी कोई रेमेडी नहीं है और वो देश को भुगतना पड़ेगा। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट नेशनल बिल्डिंग में अगर कोई रोल है तो अध्यापक का है। ये बच्चे ही हैं जो देश को आगे बढ़ाएंगे, ये बच्चे ही हैं जो देश को आगे ले जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो हमने अपना स्थान बनाया वो इसलिए बनाया कि जो वर्तमान पीढ़ी है उन्होंने अपने जीवन के कुछ स्टैंडर्ड रखे, कुछ मान रखे और कुछ इस तरह के सिद्धांत बनाए कि देश के लिए कुछ कटिबद्ध है, कुछ करने को तत्पर है। अगर इन बच्चों का चरित्र निर्माण इसलिए किया, इस प्रकार किया गया कि देश का जज्बा इनमें होगा तो देश के अच्छे नागरिक बनेंगे। अच्छा आचरण अगर इनमें डेवलप हो गया तो अच्छे आचरण करेंगे। अगर कोई कमी रहेगी तो वो कमी निश्चित रूप से इनको जिंदगी भर भुगतनी पड़ेगी। एक निवेदन और करना चाहता हूं तुम्हें, किताबी ज्ञान ही आजकल कोई पर्याप्त नहीं है। मैं पेरेंट्स को विशेष तौर पर कहना चाहता हूं, अभिभावकों को कहना चाहता हूं कि खाली BA MA करके और नौकरी प्राप्त कर लेते थे वो टाइम गया। आजकल कई क्षेत्र हैं अपने करियर बनाने के लिए। जो बच्चा पढ़ाई में होशियार है, जिसका बायोलॉजी में इंटरेस्ट है, उसको जबरदस्ती मैथमेटिक्स में मत डालें, उसको बायोलॉजी पढ़ाए, डॉक्टर बनेगा या बायोकेमिस्ट्री में कहीं जाएगा या और किसी फील्ड में अपना काम करेगा। जिसको मैथमेटिक्स में है उसको इंजीनियरिंग दिलाएगा। जो डांसिंग में ठीक है, डांसिंग भी अपने आप में करियर है। अगर म्यूजिक में कोई बच्चा ठीक है तो म्यूजिक भी अपने आप में एक करियर है। मैं कहना ये चाहता हूं, जिस विधा में बच्चे का दिमाग लगता है, उसकी रुचि है, उस विधा में उसको आगे बढ़ाइए। लेकिन पुणे में स्कूल को संचालित कर रहे हैं प्रिंसिपल साहब और डायरेक्टर साहब और उनके स्टाफ मेंबरान को कहना चाहता हूं, साथ ही साथ अभिभावकों को भी कहना चाहता हूं, माँ बच्चे की सबसे पहली टीचर होती है, वो भी ध्यान रखे। लेकिन बाद की स्टेज पर बच्चे का जी के अच्छा होना चाहिए, उसको अपने आसपास जो घटनाक्रम घटित हो रहा है उसकी जानकारी होनी चाहिए। शुरू से उसको इस तरह कर दें कि वो सजग रहे, सतर्क रहे और हर चीज को वहां पे आवाज करे और उसको पता होना चाहिए कि मेरे आसपास क्या हो रहा है। आने वाला समय बहुत कठोर कॉम्पिटिशन का होगा। मैं विशेष रूप से अभिभावकों को कहना चाहता हूँ, माताओं को कहना चाहता हूँ, वो टाइम गया जब आप लोग आसानी से अपना जॉब पा गए या बिजनेस में अच्छा सफल हो गए या किसी क्षेत्र में सफल हो गए। कठोर कॉम्पिटिशन है, गलाघाट प्रतियोगिता होगी और वही बच्चा सफल होगा जो सबसे फिट होगा। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट ये थ्योरी है। हर तरह से बच्चों को तैयार करिए, वो किताबी रूप से भी ठीक हो, फिजिकली भी ठीक हो, उसका स्वास्थ्य भी ठीक हो, उसका चरित्र भी ठीक हो, उसका करेंट अफेयर भी ठीक हो, उसका जीके भी ठीक हो और हर तरह से वो ठीक होगा तो ही कॉम्पिटिशन में आ पाएगा। इन्हीं बच्चों को आगे जाके IAS के एग्जाम फेस करनी है, IPS के एग्जाम फेस करनी है, इंजीनियरिंग के एग्जाम फेस करनी है, नीट इन्हीं को देना है, सब कुछ इन्हीं को देना है। और यही अगर ये सब तरह से ठीक होंगे तो ये बच्चे सफल नागरिक बनेंगे। सफलता इनको कदम छूटेगी। आपका समय लिया उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, लेकिन ये बातें कहनी जरूरी थी। इस तरह के कार्यक्रम में बच्चों का फोकस, उनके कैरियर का फोकस और उसके प्रति हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो बहुत जरूरी यहाँ बोलनी चाहिए थी, इसलिए बोला। आप लोगों ने विशेषकर आयोजन समिति ने मुझे बुलाया
बच्चों के इतने अच्छे कार्यक्रम देखने का मौका मिला, 2 बातें आपसे करने का मौका मिला, इसके लिए मैं निश्चित रूप से उन सभी को धन्यवाद देता हूँ। अंत में एक बात और कहता हूँ, आपने मुझे गौरव दिया पिलानी का, मैंने कहलाने का, पिलानी का विधायक कहलाने का। पिलानी मीन्स हब ऑफ इंटरनेशनल एजुकेशन, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पिलानी का नाम जाना जाता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। बहुत घुमा हूँ, बहुत जगह देखी है, जहाँ भी पिलानी का नाम लिया जाता है, पिलानी अपने आप में ख्यात विख्यात है। और वहाँ का विधायक बनने का आपने मुझे अवसर दिया। राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत में आपकी आवाज बुलंदी के साथ उठाने का मौका दिया, उसके लिए निश्चित रूप से आभार प्रकट करना चाहूँगा। आपका बहुत बहुत आभारी हूँ और आश्वस्त करता हूँ कि जैसा मैं हूँ, चाहे एमएलए के रूप में हूँ या मेरी अपनी जो पर्सनल कैपेसिटी है उसके रूप में हूँ, पिलानी के हर नागरिक के लिए हर स्तर पर समय और स्थान की कोई पाबंदी नहीं है, आपके लिए तैयार हूँ पिलानी के विकास के लिए। अब वो समय आ गया है कि आप भी जो भी विकास करने वाली एजेंसी हैं उनके साथ कदम के कदम मिलाएं, पिलानी को आगे बढ़ाएं, बच्चों का भविष्य बनाएं, अच्छे नागरिक बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार।